شاید محمد ہماری دولت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے؟ نہیں، محمد اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر سمجھتا ہے اور وہ اپنے کاموں سے دستبردار ہونے والا نہیں۔ ابو طالب اب بھی اگرچہ اس نے محمد کا دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن شدت کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت کرتا ہے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں۔ میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ اتفاق رائے رکھتا ہوں ابو سفیان۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ محمد کی حمایت کرتا ہے، لہٰذا اگر ضرورت ہوئی تو ابو طالب کو بھی راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو ابو حکم؟ ابو طالب مکہ اور قریش کا سردار ہے، اگر اسے راستے سے ہٹا دیتے ہیں تو یہ کام مکے میں رسم بن جائے گا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ محمد کے پیروکار تمہیں ابو جہل کیوں کہتے ہیں۔ ان احمقانہ باتوں کو چھوڑ دو۔ ابو طالب کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں اور تم یہاں ابو لہب سرداری کے عہدے پر فائز ہو جائیں، اور اس وقت کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اپنے تئیں یہ جرت کر بیٹھیں کہ ہمیں راستے سے ہٹانے کے لیے کوئی منصوبہ بنائیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ میری نظر میں تو عبد المطلب کے تمام بیٹوں کو تہہ تیغ کر دینا چاہیے۔ بس کریں، آپ لوگ قریش کے سردار ہیں۔ اگر محمد اور اس کے پیروکار دیکھ لیں کہ ہم ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں تو ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے اندر کوئی دمخم نہیں ہے۔ محمد ایک ہر دل عزیز شخص ہے، اور اگرچہ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن ایک کامل شخص ہے۔ ابو طالب اس کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہے۔ بہترین کام یہ ہے کہ ہم ابو طالب کو ایک اور اچھا سا بیٹا دے دیں اور محمد کو ان سے چھین لے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ کام پورا کر دو۔ میری نظر میں تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہے۔ کون ہو سکتا ہے جو ابو طالب کی زندگی میں محمد کی جگہ لے سکے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ میں ایک شخص کو جانتا ہوں۔ خوش آمدید۔ تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہم تم سے ملنے آئے ہیں ابو طالب۔ ابو طالب، گویا تم اپنے بھائی اور قریش کے عمائدین کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے ہو؟ ابو طالب، اے مکے کے سردار، ہم ایک بار پھر یہاں آئے ہیں تاکہ دوبارہ تمہارے بھتیجے محمد کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ ہماری پہلے والی باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں راضی کرا لیں۔ اچھی بات ہے۔ میں یہ جاننے کے لیے بہت متجسس ہوں کہ اس بار تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو۔ شاید تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اگر ایسی بات ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ ابو طالب، ذرا اس لائق اور طاقتور نوجوان کو دیکھ لو۔ اس کا نام عمار ہے، ولید ابن مغیرہ کا بیٹا۔ اس کے باپ کو تو تم جانتے ہو، یہ شاعر اور خطیب نوجوان ہے، اچھے انداز سے بات کرتا ہے، اور فصاحت و بلاغت اور ذہانت کو اس نے اپنے باپ سے ورثے میں حاصل کیا ہے، اسی بڑے تاجر سے۔ وہ خوبصورت اور دولت مند ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ شاباش شاباش، ولید کو اس طرح کے بیٹے ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ ہاں، اسی طرح یہ بہت تجربے کار اور تجارتی امور سے آگاہ ہے۔ اس میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ تھوڑے سے سرمایے سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ وہ پچھلے سال یمن کی طرف ایک کارواں لے کر گیا اور افسانوی دولت کے ساتھ واپس آیا۔ یہ ایک قابل نوجوان ہے،
घुड़सवारी और शमशीर जनी में भी महारत रखता है। शाबाश। ये मक्के के उन गिनती के चंद बाशिंदों में से है जो पढ़ना लिखना जानता है। तुम लोग खुलकर बात करो, तुम्हारा मकसद क्या है? इस जवान को तुम लोग यहाँ लेकर क्यों आए हो? अबू तालिब, ऐ कुरैश के सरदार, आओ और अमारा को, जो इन तमाम नेक और पसंदीदा सिफात का मालिक है, उसे अपना बेटा बना लो और उसके बदले मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। शर्म करो तुम लोग, तुम सबसे कहता हूं मैं, तुम लोगों ने अपनी बुरी सोचों को एक दूसरे के साथ ग्रह लगाकर इस तरह की कमजोर रस्सी तैयार कर ली है। क्या मैं अपनी आगोश में किसी और बेटी की परवरिश करूं और अपने लखते जिगर को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसका खून बहा दो? खुदा की कसम, मैं मोहम्मद का एक बाल भी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। चले जाओ, चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ, जाओ। ऐ अबू तालिब, तुम खुद बता दो कि हमें क्या करना चाहिए, या हम तुम्हारी और तुम्हारे भतीजे की खुदसरी से तंग आ गए हैं। खुदसरी? ये सिफत तुम लोगों पर सादिकाती है। ये तुम हो जो खुदसरी और तासुब की बिना पर मोहम्मद की बातों को सुनने से अपने दिलो जान की समातों को बंद किए हुए हो और लम्हा भर के लिए गौर नहीं करते हो। वो निजात बख्श आवाज जो सहरा के दूर तरीन इलाकों के बाशिंदे सुनते हैं, तुम लोग उसको नहीं सुन रहे हो। क्यों? इसलिए कि तुम सुनना नहीं चाहते हो। क्या जानना चाहिए था? मैं जानता था ऐसा ही होगा। वो मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं करने वाला। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूं। तुम हमेशा मेरी जिल्लत और बेबसी देखने की ख्वाहिशमंद रहे हो। अब तुम्हें एक अच्छा बहाना मिल गया है। तुम कुरैश को मेरे खिलाफ वरगलाना चाहते हो। मुझे तुम लोगों से कोई डर नहीं है। तुम जल्द समझ जाओगे उस दीन से मुकाबला करना जिसका मुहाफिज खुदा हो। बहुत बेहुदा काम कर रहे हो तुम लोग। हम मोहम्मद को तुम्हारे बाद कुरैश का सरदार मानने और अपनी दौलत को उसके इख्तियार में देने के लिए तैयार हैं, इस शर्त पर कि वो हमारे दीन से कोई वास्ता न रखे। क्या तुम नहीं सोचते कि वो एक किस्म की बीमारी में मुब्तला हो गया है जो अपने आप को नबी समझता है? हम बेहतरीन तबीबों को उसके इलाज के लिए यहाँ बुला सकते हैं। ऐ अबू तालिब, हमारी ख्वाहिश को पूरी करो और एक बार फिर उससे बात करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुमने मोहम्मद से बात की अबू तालिब? उसका जवाब क्या था? मोहम्मद कहते हैं, मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगता हूं। मैं सिर्फ 4 तजावीज पेश करता हूं ताकि आप लोग उनमें से एक को कबूल कर लें। इस सूरत में आप अरबों पर हुकूमत करेंगे और गैर अरबों को अपना पैरो करार देंगे। हम एक बात की जगह पर उसकी 10 बातें मानने के लिए तैयार है। 10 बातें। आराम से अबू हकम, आराम से। पहले उनकी बातें सुन लो और फिर बात करो। मोहम्मद कहते हैं, खुदा की वहदानियत को कबूल करें और बुतों की परस्तिश छोड़ दें। क्या कहा है? मोहम्मद ने ये क्या वाहियात बात कर दी? 360 बुतों को छोड़ दें और सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करें, एक ही खुदा की, और वो भी ऐसे खुदा की जो हर जगह पर मौजूद है। ये बिल्कुल नाशुक्री की बात है, बिल्कुल नाशुक्री की। है अबू तालिब, सुनो, तुम खुद बेहतर जानते हो कि हर कबीले का अपना एक बुत है। हमारे लिए फख्र की बात है कि हम उनकी हिफाजत काबे में करते हैं। हमारे तमाम कामकाज और तिजारत की रौनक इन्हीं बुतों की बरकत से है, इन्हीं बुतों की बरकत से। आए चले हजरात, हमने अपना वक्त जाया किया है। यहाँ बैठकर बातें करना बेफायदा है।
मोहम्मद की दूसरी तजावीज भी यकीनन इस तरह की होंगी। एक मिसाल पूरी दास्तान के लिए काफी है। आए चले। अबू सुफियान सच कहता है। चलो चलते हैं। नहीं, अगर हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे तो बनी हाशिम उसका बदला लेने के लिए खड़े होंगे और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। बेहतर यह है कि उसके पैरोकारों को मक्का वालों की आंखों के सामने अजियत दें, ताकि कोई और शख्स मोहम्मद की दावत का मुस्बत जवाब देने की जुर्रत ना कर सके। सिर्फ इस तरीके से मोहम्मद का रास्ता रोका जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ मुत्तफिक हूँ अबू सुफियान। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मोहम्मद के मानने वालों में कमी आ जाएगी। उसके मानने वालों का कोई हामी तो है नहीं, लिहाजा या तो वो शदीद ईजाओं की वजह से मोहम्मद का दीन छोड़ देंगे और या अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। इसके सिवा कोई चारा नहीं रह गया है। हाँ। ना मारो मुझे, ना मारो, ना मारो मुझे, ना मारो मुझे, ना मारो। आज के बाद इस बुत की परस्तिश करोगी। तुम्हारा खुदा ये बुत है, ये बुत। नहीं, ये तुम्हारा खुदा है, हुबल तेरा खुदा है। नहीं, शर्म करो तुम। मुझे इस तौहीन की सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं, ले जा दो मुझे। नहीं, 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 नहीं। काफी है, अब इसका दम निकल चुका है। ना मारो, ना मारो, ना मारो, अगरचे मुसलमान ईसार व कुर्बानी के जरिए कुरैश के वहशियाना तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन मुसलमानों के सख्त हालात से हुजूर शदीद गम व गुस्से से दो चार हो गए थे। उन लोगों ने रख्त सफर बांध लिया जो इसके लिए ज्यादा आमादगी रखते थे। वो मुशरिकीन को इत्तला मिलने से पहले रातों रात जद्दाह की बंदरगाह की जानिब चल पड़े।
उस तरफ से चलते हैं। चलो चलो चलो।